The last video I have explained in detail about questionnaire, and that's very important also. But questionnaire is important, but what's in questionnaire is most important, is also most important, and that is what we are going to study in this particular video. And it's not just about choosing variable, it's about choosing the right items, which means choosing the right questions for your questionnaire. Otherwise you'll find yourself in chaos while you analyze the data. Okay, a very good evening everyone, my name is Rahul Negi and you are watching me on the Scholars Guide. So this basically is ep- topic number 18. So this is topic 18, how to identify variables and select questionnaire items in for research, for your research basically. So there are 2 points. Number one, you have to find out the variables. Okay. Number two, you have to select the questionnaire items. So it's definitely not important that you choose both the variables and the items from the same research papers, because most of the research papers, they do not include questionnaire items. They do include variable because that's obvious thing, but they do not include what questionnaire item. So we'll see how to select them. Okay. So many students know how to create a Google form, but they don't know what variable to choose. आपको क्या वेरिएबल चूज करने हैं, what questionnaire item come from, where questionnaire items come from, questionnaire item कहाँ से आप पिक करते हो, how researchers select construct what is the construct क्या होता है, select construct कैसे करते हैं, and how to know whether item is valid or not, because that is very important. क्योंकि आपने आइटम्स अपने मन से ले लिए तो डेटा एनालिसिस में आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और अगर आपने सपोज डेटा एनालिसिस कर भी लिया एंड यू हैव गिवन योर पेपर फॉर पब्लिकेशन, सो दे विल डाउट योर द ऑथेंटिसिटी कि आपने ये खुद से बनाया। एंड सिंस वी आर बिगनर्स, सो वी आर नॉट सपोज टू यू नो think that whatever in our mind that must be there in the paper. So in today's lecture, what we'll learn, what are variables, how to identify variables, from where to choose items, questionnaire items, how to select good items, common mistakes student make. So common mistakes पहले बता देता हूँ मैं, common mistakes क्या होते हैं। वेरिएबल हम चूज करने में गलती करते हैं, क्वेश्चनियर हम खुद से बनाते हैं विच इज नॉट रिकमेंडेड, एंड विच इज बेसिकली आप कहोगे सर कभी ना कभी तो किसी ने तो क्वेश्चनियर items question बनाए होंगे. That's true, someone must have done it already, but since we are research scholars, we are not some top notch researcher who have many published papers, who have a lot of experience in this field. We just want to get done with the research in the span of 3 years, and you know अगर आपको इंटरेस्ट है तो there is no end to learning. Okay. Yes. In simple words, if I put it, a variable is something we measure in research. Research में हम क्या measure करते हैं? Variables. Variables के score देखते हैं. Variables के mean निकालते हैं. Median. उसको हम PLSM में लगाते हैं. Use करते हैं उसका PLSM में. So variable is very important. Example क्या है? अगर हम एजुकेशन में देखें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, तो उसके वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं? टीचिंग इफेक्टिवनेस, student satisfaction, whether student is satisfied with the education system, whether teaching effectiveness is there in the education, academic performance. These are variables of what? Education. If I talk about finance के क्या क्या हमारे पास वेरिएबल हो सकते हैं? रिस्क टॉलरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया. दीज आर द वेरिएबल्स ऑफ फाइनेंस. साइकोलॉजी में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मोटिवेशन. ठीक है. सो ये अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा कि टॉपिक के बाद हमारे वेरिएबल होते क्या हैं. वट एवर कैन इंक्रीज, डिक्रीज, डिफर और बी मेजर्ड वेरिएबल होता है. कुछ भी आपके रिसर्च पेपर में या फिर आपने किसी पब्लिश्ड पेपर में देखा है, कुछ इंक्रीज हो रहा है, कुछ डिक्रीज हो रहा है, किसी की वजह से कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, किसी को मेजर किया जा रहा है, तो दैट मीन्स यू हैव टू लॉक इट डाउन एंड दैट इज वेरिएबल. Now there are
methods. Now I have three methods for variables and three sources for items. ठीक है, पहले मेथड देखेंगे फ्रॉम रिसर्च पेपर. दिस इज द मोस्ट recommended and most used by research scholars because we don't want a lot of chaos. We want to get our research done in the span of 3 years so that we can work afterwards. ठीक है, दिस इज द बेस्ट मेथड. हाउ यू हैव टू सोर्स, कहाँ 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 कौन कौन से सोर्स हैं हमारे पास. गूगल स्कॉलर है, स्कॉलर गेट है, स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है हमारा, और भी कई हैं. ठीक है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं. सर्च क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है, वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसिंग ऑनलाइन लर्निंग सेटिस्फेक्शन. ये आपका सर्च स्ट्रिंग हो गया. मतलब इसको आप डाल के आप रिसर्च पेपर्स ढूंढ सकते हो. फिर उसके अंदर आपको अपने क्या ढूंढने, वेरिएबल्स. व्हाट टू लुक फॉर, हमें रिसर्च पेपर, चलो यहाँ से हमें रिसर्च पेपर मिल गए, पर हमें पढ़ना क्या है, हमें एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अगर दे दिया तो इससे आसान कुछ नहीं है, क्योंकि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में एक डायग्रामेटिक वे में हमें क्या दिखाया जाता है, वेरिएबल्स हमें दिखाए जाते हैं कि आईवी का इफेक्ट कैसे पड़ रहा है डीवी पे, मीडिएटिंग क्या है और मॉडरेटिंग क्या है. सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है तब तो कोई दिक्कत नहीं. एब्स्ट्रैक्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन से, आपको समझना पड़ेगा कौन से वेरिएबल हैं. हाइपोथेसिस सिलेक्शन, हाइपोथेसिस सिलेक्शन भी बहुत इजी होता है, क्योंकि हाइपोथेसिस इज लाइक क्वेश्चन की एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो दिखाती है कि किसका इम्पैक्ट किस पे हम मेजर कर रहे हैं, या फिर किसका इम्पैक्ट किस पे हो सकता है, या फिर है या फिर नहीं है. देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट और देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट. तो वहां से भी आपको वेरिएबल का पता लग जाए. ठीक है, दिस सेक्शन रिवेल वेरिएबल्स डायरेक्टली. एग्जाम्पल क्या है, आपका टॉपिक है बिहेवियर बायस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग. तो आपने ये डाल दिया, ठीक है, वहां पर सर्च स्ट्रिंग में डाल दिया. यू हैव पुट दैट इन द सर्च स्ट्रिंग. पॉसिबल वेरिएबल्स आपके क्या होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस होंगे, हर्डिंग, लॉस अवर्जन, रिस्क परसेप्शन, फाइनेंशियल लिटरेसी. डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग. तो ये आपको कहाँ से मिलेंगे, व्हेन यू विल रीड द एब्स्ट्रैक्ट, conceptual framework and hypothesis section. So this was method 1 and this is the most recommended. Method 2 is from theory. अब theory is, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, समवन परचेज्ड अ फोन. इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं. एक है क्लमजी रीज़न. क्लमजी रीज़न मतलब उसके पास पैसा था, उसको नीड थी, और उसने देखा मार्केट में एक फ़ोन है तो उन्होंने खरीद लिया. ठीक है, अब थियरी बेस्ड रीज़न क्या है कि सोशल इन्फ्लुएंस, मतलब सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से उसने खरीदा. रेपुटेशन, ही वांटेड टू शो हिज रेपुटेशन, दैट्स व्हाई ही इज परचेज्ड. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, रेपुटेशन हो गया, और मतलब और भी कई चीज़ें हैं वो प्रूव्ड हैं. दे आर प्रूव्ड इन प्रीवियस सर्चेस, या फिर प्रीवियस वर्क में ये प्रूव हो चुकी है. सोशल इन्फ्लुएंस से हमारा इम्पैक्ट होता है कि इन्वेस्ट परचेजिंग डिसीजन, हमारे रेपुटेशन, इफ वांट टू इंक्रीज दैट आल्सो इज लिंक टू आवर परचेज बिहेवियर. सो वो प्रूव्ड है तो उनको हम थ्योरी मानते हैं. सो गुड रिसर्च इज थ्योरी बेस्ड. एग्जाम्पल थ्योरी, थ्योरी क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, ये कुछ बताता है. टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंट मॉडल्स कुछ बताता है. मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी कुछ बताता है, जैसे कौन कौन सी नीड की हायरार्की क्या क्या है. ठीक है, थ्योरीज ऑलरेडी प्रोवाइड वेरिएबल, थ्योरी वेरिएबल प्रोवाइड करती है. थ्योरी आर लाइक प्रूव्ड वर्क. ये प्रूव्ड वर्क है, पहले ये प्रूव हो चुकी है, ये रिसर्च पेपर्स में या थीसिस में ये प्रूव हो चुकी है. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर देखें तो ये क्या डेपिसिट करता है, एटीट्यूड के बारे में बताता है, सब्जेक्टिव नॉर्म, परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल. अगर आपकी रिसर्च कोई ऐसी है जिसमें पॉसिबल वेरिएबल्स ये हो सकते हैं तो यू कैन कंसिडर थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर. जैसे एटीट्यूड, किसी पर्सन का आप पर्टिकुलर रिसर्च में एटीट्यूड मेजर करना चाहते हैं. फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. अब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इज basically not for the beginners, it is for the pro researcher because we find, although हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं एंड वी ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम थ्रू रिसर्चेस, बट दैट इज़ नॉट द रिकमेंडेड मेथड फॉर रिसर्चर बिकॉज देर आर वेरियस स्टेप्स. ठीक है, आपने कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर ली,
तो ज़रूरी नहीं है उस पर आपको क्वेश्चनियर मिले, उस पे आपको आइटम्स मिले, आपको वेरिएबल्स भी खुद सेट करने पड़ेंगे, आपको आइटम्स भी खुद बनाने पड़ेंगे। सो दैट इज़ अ लेंथी प्रोसेस एंड दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट मेथड है तो इसलिए बता देते हैं। ऑब्जर्वर प्रैक्टिकल इश्यूज, स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड ड्यूर ऑनलाइन लर्निंग से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनके दिमाग में आया इसका कारण क्या हो सकता है? अटेंशन स्पैन हो सकता है, नेटवर्क क्वालिटी हो सकती है, मोटिवेशन हो सकता है, सोशल मीडिया यूसेज होता है, ये पॉसिबल वेरिएबल्स हो सकते हैं। बट द थिंग इज दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर रिसर्च। ऑल्दो कोई कर लेगा तो कोई हाथ पकड़ के रोकने वाला नहीं है, बट इट्स बेटर टू बी प्लेइंग सेफ। नाउ हम आते हैं क्वेश्चनियर की तरफ। व्हाट आर आइटम्स इन क्वेश्चन? आइटम्स आर बेसिकली क्वेश्चंस, आइटम्स इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस यूज्ड टू मेजर अ वेरिएबल। एग्जांपल के लिए वेरिएबल हमारा है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, आइटम्स क्या क्या होंगे कि वो ओवर कॉन्फिडेंस बायस को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। आई बिलीव माई इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर यूजुअली करेक्ट, ठीक है। आई कैन प्रिडिक्ट मार्केट ट्रेंड बेटर देन अदर्स, सो दिस इज शोइंग व्हाट? ओवर कॉन्फिडेंस। दी स्टेटमेंट आर कॉल्ड आइटम्स। तो अगर हम देखें इसको एज वी पुट इन स्टेटमेंट लाइक, वेरिएबल क्या है? बिग कंसेप्ट, और आइटम्स क्या है हमारे पास? स्मॉलर स्टेटमेंट्स, ठीक है। यस। नाउ सोर्स कहाँ से करें? एक तो प्रीवियस रिसर्च पेपर्स। अब आप कहोगे सर रिसर्च पेपर 2 बार आ गए। देखो वहाँ पर मैंने मेथड बताया था टू सोर्स वेरिएबल्स, यहाँ पर मेथड है टू सोर्स क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर आइटम्स कैसे करें, ठीक है। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड, रिसर्चर यूजुअली अडेप्ट आइटम्स पब्लिश्ड फ्रॉम पब्लिश्ड स्टडीज। आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा, इट हैज़ वेरिएबल्स ऑफ योर चॉइस दैट यू वांट टू टेक इन योर रिसर्च, और उसमें क्वेश्चनियर भी मेंशन कर रखा है लास्ट में, एंड में रेफरेंसेस के बाद, तो आपने डायरेक्टली वो ले लिया, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी वैलिडेटेड होते हैं, ठीक है। पब्लिश्ड वर्क है तो वैलिडेटेड है, ऑलरेडी टेस्टेड है, टेस्ट करा हुआ है उन्होंने, साइंटिफिकली रिलायबल, बिकॉज दैट इज द पब्लिश्ड वर्क। हाउ टू फाइंड आइटम्स? रीड सेक्शन जैसे मेजरमेंट स्केल, क्वेश्चनियर अपेंडिक्स, इंस्ट्रक्शन सेक्शन, तो यहाँ से हमें आइटम्स मिल जाते हैं। बेसिकली रिसर्च पेपर्स में ही दे देते हूँ। स्टेटमेंट जैसे एग्जांपल देखिए, आइटम अडेप्टेड फ्रॉम स्मिथी एट अल, दिस मीन्स द रिसर्चर बोरोड द एग्जिस्टिंग वैलिडेटेड आइटम फ्रॉम स्मिथी एंड अदर्स की जो रिसर्च है 2022 की, वहां से रिसर्चर ने अपना क्वेश्चनियर आइटम सोर्स किया, एंड दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग। ओके। नाउ द सेकंड थिंग इज स्टैंडर्डाइज स्केल्स। अब कई तरह के स्केल्स होते हैं, जैसे लाइकट स्केल है जो एटीट्यूड, ओपिनियन के बारे में, इमोशंस के बारे में बताता है। 5 बिग पर्सनैलिटी ट्रेट है, जैसे ओपननेस, एक्सट्रोवर्टनेस, न्यूरो करके भी एक होता है, उसमें 5 चीज़ें आती है। देन बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, मतलब डिप्रेशन की क्या क्या स्टेजेस, मतलब क्या क्या स्किल्स डेवलप्ड हैं, जैसे सैडनेस है, लोनलीनेस है, तो वो पहले डेवलप्ड स्किल्स हैं। अगर आपका इमोशन एटीट्यूड से रिलेटेड है तो आप लाइकट स्केल ले सकते हो, जो स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक जाता है। अगर आप 5 पॉइंट लाइकट स्केल ले सकते हो, 3.7 पॉइंट लाइकट स्केल एज पर योर सुटेबिलिटी, ठीक है। पर 5 पॉइंट इज मोस्ट रिकमेंडेड। लाइकट स्केल ले सकते हो। अगर आप पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ है तो आप 5 बिग पर्सनैलिटी ट्रेट ले सकते हो। अगर आप डिप्रेशन से रिलेटेड आपका रिसर्च है तो आप बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, या उससे अगर माइनरली भी रिलेटेड है तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। तो ये है स्टैंडर्डाइज स्केल्स। नाउ द थर्ड वन इज, एंड द वन दैट आई डू नॉट रिकमेंड, इज सेल्फ डेवलप्ड आइटम। मतलब आपने खुद खुद वेरी आइटम डेवलप करी है। देखो वाई आई एम सेइंग आई एम नॉट रिकमेंडिंग सेल्फ डेवलप्ड आइटम, बिकॉज आइटम्स क्या है ना, आपको सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करना, यू हैव टू एनालाइज दैट यूजिंग SPSS, यूजिंग PLSM, एंड आपको नहीं पता आगे कितना केओस हो सकता है। कितने आइटम्स आपको लेने हैं, आपको 3 आइटम्स लेने हैं, आपको 5 आइटम लेने हैं, आपको 7 आइटम लेने हैं, वो आपको पब्लिश्ड वर्क में ही पता लगेगा व्हाट इज द एक्चुअल नंबर एंड व्हाट इज द डूएबल नंबर, ठीक है। Sometimes researchers create their own item, but these require expert validation, pilot testing, reliability testing. अगर आप खुद से भी बनाते हो तो सिर्फ एक पायलट टेस्टिंग नहीं होती। देखो क्या होता है ना, व्हेन रिसर्चर, हमको भी पायलट टेस्टिंग करनी है, पर वी डू नॉट हैव टू डू इट इन अ वेरी रिगोरियस मैनर, बिकॉज समवन हु हैज डेवलप्ड आइटम विद देमसेल्फ, दे विल डू फर्स्ट पायलट स्टडी, देन दे विल EFA रन करेंगे,
उसमें से देखेंगे वो क्या क्या अनइम्पॉर्टेंट, फिर दूसरी पायलट स्टडी करेंगे, उसके बाद रन करेंगे, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है एंड वी डो नॉट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम राइट नाउ. So this is also one of the options, but which is recommended only for experts. ठीक है. So that's it for today. I hope you liked it and found it useful. This is mainly useful for the beginner researcher because they try to do some research which is out of this world. मतलब सब ये चाहते हैं मेरी रिसर्च ऐसी हो जिसने पहले कभी की नहीं हो. Believe me, don't fall this don't fall for this trap because you are going to regret later. Do uh, consider research which are already published, उसमें आप गैप ढूंढो और अपनी रिसर्च स्टार्ट करो. That's it for today. I hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide and comment down your valuable suggestions. And I'll definitely see you in the next video.